ओवर थिंकिंग में जैसे मास्टर्स के टाइम हुआ था कि यार क्यों इकोनॉमिक्स लिया, इससे अच्छा तो जैसे सब बीकॉम ऑनर्स के साथ सीए कर लेते थे, काश मैं भी कर लेती थी, पोटेंशियल तो था करने का। बट फिर आई फील कि द पाथ इज सेट, योर डेस्टिनी इज सेट। These are all बेस्ट कॉलेजेस, पर अभी उनका हाउ डू यू रेट द लेवल ऑफ लर्निंग? क्या आप वो चीज़ें सीखती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होती हैं? आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है या लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? आई थॉट कि प्रैक्टिकल इसमें बहुत कम था। इकोनॉमिक्स में फन आएगा कि वी विल डू सम रिसर्च अबाउट द करंट सिनेरियोज कैसे चल रहे हैं हमारे, एक्चुअली कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पॉलिसीज कैसे फॉर्म होती है, कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। बट इन रियलिटी लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स इज वे टू डिफरेंट। इतना अच्छा कॉलेज है, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो सेल्स की जॉब क्यों आई है आपके पास? So there is my cousin. He is in this field only. He guided me. So he only said me, come and talk to him. He will guide you like in candid ways. A 96.5% in plus 2, an economics honors graduate from Daulat Ram College, then moved to actuaries, and then finally landed up in core finance role. I have a special guest today, Yamini Gupta. Yamini, welcome to the podcast. Thank you, sir, for inviting me. She has been a part of the financial modeling and valuation program from the Wall Street School and has successfully got placed. Today, let's hear out Yamini's story because it will resonate with so many people, who graduate and are a little clueless in terms of what are they supposed to do in their career, and then when they get the right break. So many of us will be connecting with her story. So let's hear out from the horse's mouth. Yamini, so welcome to the podcast. थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. So, sir, my name is Yamini Gupta and I reside in New Delhi, and I have done my graduation from Daulat Ram College in the field of economics. And along with my graduation, I completed 2 actuarial science papers, and after that I pursued masters in economics. And with my masters in economics, I enrolled myself in the Wall Street School for the financial modeling course. तो आपने इकोनॉमिक्स प्लस टू में आपके 96.5% आए थे, तो विच इज़ लाइक अमेजिंग परसेंटेज. ठीक है, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स क्यों चुना? Sir, I got 100 in economics. You got 100 in economics and you always had a liking for economics. Yes, sir. And then I thought it will be it's a growing field, economics field. I will get an endless job. I used to like numbers, practical things I used to like more. So that's why I thought of going in an economics field and then pursue my career in that. ठीक है, तो दौलत राम इज़ अ वेरी 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 गुड कॉलेज, राइट? तो आपका कॉलेज लाइफ कैसी थी? आपका प्लस टू कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था? So in 2020. COVID year. Okay, ठीक है. So, sir, my 3 sems were in online only, and then my sem 4 I had offline exams. That too study was only online. I gave exams offline. And sir, उसके बाद actually I have actuarial papers also. So I used to go less to the college. I used to study at home only. Okay. So in semester 6 I enjoyed my college life basically. पहली बार कॉलेज लाइफ जो दिल्ली की कॉलेज लाइफ है आपने? Yes sir, I enjoyed. मैंने पूरा नॉर्थ कैंपस घूमा, साउथ दिल्ली घूमा, हौस खास घूमा, सब जगह घूमती थी मैं. अच्छा, आपका एंजॉयमेंट का मतलब है कि आपने सब जगह पे घूमा, मतलब सारी घूमा बस. हाँ. ओके, तो एक्चुअलीज का कैसे माइंड में आया कि मैं एक्चुअलीज करती हूँ? Sir, basically, in Sem 3, I thought like, what should I do with it? I should do masters from abroad. I should go for MBA, or I should pursue some papers and then go with my career. So then I explored. I talked to people. Then I thought about actuarial science because it is correlated with economics, like statistics, econometrics. So they were my subjects. So then I thought of actuarials. I talked to people. I consulted them about it. So then I go ahead with actuarials because first I thought about masters from abroad, but my parents didn't agree to it. Why would the parents not agree to it? Like they were like safety concern little. They were more about that you are capable of doing things in India also, so you should do here. So that's why. तो कहीं ना कहीं पर वो लगा था थोड़ा सा स्टेप बैक की, मतलब आई एम एज टैलेंटेड एज एनीबडी एल्स इज, तो why should boys have all the fun? Like वो वाला फीलिंग था. लगा था, ऑब्वियसली लगा था, बट आई थॉट कि आई कैन अंडरस्टैंड दे कैन, मतलब जो उनको लगता है एज अ गर्ल पेरेंट, सो आई अंडरस्टैंड देयर फीलिंग. सो आई थॉट नो प्रॉब्लम. देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, सो देन आई गो फॉर द एक्चुअरियल साइंस. Got it. Yes. तो उसके कितने एग्जाम्स होते हैं एक्चुअल साइंस के? सर टोटल वी हैव 13 एग्जाम्स, बट आई क्लियर्ड 2. You have cleared 2 exams. Yes. And do you intend to pursue actuarial science onwards also? Sir, currently no, because I think it's very like off track from this finance field. It's basically about analysis, statistics, so that's why I feel. ठीक है. And with the coming of AI, because आपने 2020 में किया था, आप उसके बाद आप इकोनॉमिक्स कर रही हैं,
2022 में AI आ गया, Yes, sir. ठीक है, और उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग एक्चुअलीज कहीं ना कहीं पर सब कुछ ऑटोमेशन हो गया है. Yes, sir. तो आपको कहीं पर लगा कि आप शायद कर रही हैं और कहीं ना कहीं पर वो सेंस ऑफ ऑब्सोलीटनेस है. तो फिर उस टाइम पर क्या था कि यार बिकॉज दिस फेज दैट यू आर इन, जिस टाइम पर आप ग्रेजुएशन कर रही हैं और अपना करियर बनाना है आपको, तो कहीं ना कहीं पर वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट हो रही हैं. तो आपको आर यू हैविंग दैट सेंस ऑफ प्रेशर कि यार क्या करना है, या दौलत राम में प्लेसमेंट्स का क्या सीन था? Sir, placements आई थी, but they were like normal placements थी. Like I was not, मतलब पैकेज भी कम थे और थोड़ा टीचिंग साइड्स की भी आई, सेल साइड की भी आई, बैंक के सेल्स की. सो मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें इतना. तो जैसे इतना अच्छा कॉलेज है, तो आपके पास किस तरह के रोल्स आ रहे थे? मीन्स आपकी, मैं स्पेसिफिक आपकी नहीं, अगर आपके बैच की बात करूं, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो सेल्स की जॉब क्यों आएंगी आपके पास? सर वो ग्रुप में था तो दे यूज्ड टू सेंड इट. एक्चुअल्स की भी आई थी एंड KPMG वगैरह की भी आई थी उसमें. सो मैं एक्चुअल साइंस के लिए मैं बैठी थी कंपनी के लिए, बट आई कुडंट क्लियर द टेक्निकल एंड so yeah, in KPMG also I said, but there also I couldn't clear the group discussion round. So then I thought ki let's go for the masters, give some time for myself to develop my skills and where I'm lacking, so that's why I'm not able to crack them. So then I opted that I should take a break and go for the masters. Got it. तो अगर मैं सही से समझूं, दौलत राम में प्लेसमेंट्स हुई थी, लेकिन सेल्स में था, एक्चुअलीज में आ रही थी. KPMG के किस रोल में आ रही थी? Sir, it was basically of the risk associate types. KPMG या KGS में? KPMG. KPMG इंडिया में. Yes, sir. ओके, ठीक है. और आपके फ्रेंड्स का प्लेसमेंट्स हो रहा था वहाँ पे? No, sir. They were also for the master's degree or MBA. So. बिकॉज ये वाला फेज ना बड़ा सॉर्ट ऑफ डेलिकेट फेज होता है, Yes, बिकॉज sir. आपकी डिसीजन मेकिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए. Exactly, sir. राइट. तो क्योंकि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है एक डिसेंट कॉलेज से, आपका पेडिग्री बहुत अच्छा है, आपने 96 परसेंटाइल लिया हुआ है +2 में, तो उसके बाद या तो मास्टर्स करो या जॉब शुरू करो. Yes, sir. तो आपने फिर क्यों सोचा कि अब मुझे प्लेसमेंट चाहिए और अभी मुझे मास्टर्स के लिए नहीं जाना? So basically, first plan was actuaries only. So I thought, ki let's take a placement and then maybe if the actuaries didn't work for me, then I will go for the masters thing. ओके. Yeah. पर एक्चुअलीज के तो 13 एग्जाम्स हैं. Yes, sir. So basically, with the job, we can clear the paper. The company gives us exemptions, give the time for the break. So it was like that. समझा. तो उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन आपने कर लिया दौलत राम कॉलेज, Yes, sir. नॉट हैविंग ए जॉब इन हैंड, एंड कल आपको कॉलेज नहीं जाना है, व्हाट नेक्स्ट? Sir, actually, in my like in June, my exams got over. जून ऑफ 2023, ठीक है. And basically I got admission in masters in my April or May. So I had a plan that after my graduation I had a break of 2 months and then my masters college started. So I got it clear that तो आप मास्टर्स किस में कर रही हैं? in economics only. वहीं से, दौलत राम से? No, sir, I'm doing my masters from Terry School of Advanced Studies. It's in Vasant Kunj. ठीक है. सो यू आर डूइंग मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज? Terry School of Advanced टेरी Studies. से, ठीक है. Yes, sir. आपका इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन है. Yes, sir. तो आपने फिर क्यों सोचा कि अब मुझे अब जॉब करना है, ऐसा क्यों? Sir, then after masters my plan was to take a job. तो अब तो टेरी में कैसा है प्लेसमेंट्स का सीन? Sir, it is not too good. The profile which were they were the जो profiles वहाँ आ रही थी, they were mostly of the research or with the experience. So I thought that I'm not for the research thing. I was not able to do that, so that's why. Got it. तो आपने ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स करते रहे, ठीक है, एंड यू आर इन द सेकंड ईयर ऑफ योर मास्टर्स राइट नाउ, Yes, sir. ठीक है, व्हिच विल गेट इवेंचुअली गेट कंप्लीटेड. Yes, sir. ठीक है. तो फिर अब वो वाली प्रोफाइल्स आ रही हैं आपके पास जिसमें शायद आपका मन नहीं है Yes. जाने का. Yes, sir. आप मास्टर्स हो चुका है, Yes, sir. Almost. ठीक है. अब पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होगा कि यार अब आगे क्या करना है, राइट? तो what was the feeling at that time? So, sir, in my SEM 3, I thought like, what should I do next? I have just 6 months of my life, and then I need a job. 6 months of my life in college. पढ़ाई वाला Yeah, मोड, in राइट? college, उसके बाद तो मास्टर्स की बात क्या करना है? Rather, I need a job then. So Got it. I thought, then I consulted my like friends, family, cousins, like what should I do? I'm little worried about it. So there's my cousin. He is in this field only, but in technical thing. Got it. So I contacted him. So he advised me about you to join the Wall Street School for the financial thing, because
I didn't have much interest in the technical aspect of the stocks. So he guided me, and then I came to you. If you remember, I came to talk to you. So he only said me to come and talk to Himanshu sir. He will guide you like a candid way. ठीक है. So then I came, then I talked to you, then I thought ki it doesn't matter if I'm from the economics, if I have an interest and if I have the capability, I will do in finance field too. Got it. So then I enrolled the course, and then I got the placement. And you finally got the placement, Yes, right? sir. So in a way validation हो गया कि हाँ ठीक है अब लड़की कमाऊपूत हो गई है Yes family sir, yes sir. Now, how do the parents feel now? They're very happy about it. Like I finally got the job. Like I'm in just masters. I'm just completing my masters, and then also I landed up in the job. So Got they're it. very happy about it. Fantastic. And how about your colleagues in your college? उनको पता है इसके बारे में? My 2-3 friends know, and they're all happy about it. And they're like, okay, तू भी अब गुड़गांव आ जाएगी हमारे साथ, हम साथ रहेंगे और ये. तो they're very also happy about it. बढ़िया. तो यामिनी एक बात बताओ, जैसे स्पेशली फॉर फीमेल्स अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे तो यू हैव बीन born and brought up in Delhi. Yes sir. ठीक है. तो उसके बाद मोस्टली जो जॉब्स हैं वो अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, राइट, वो गुड़गांव में है या नोएडा में है. Yes sir. आर योर पेरेंट्स कंफर्टेबल कि यार जैसे वो पहले बोल रहे थे कि आपको बाहर नहीं जाना है, यू नो, फॉर ऑल दोस रीजंस लाइक सेफ्टी रीजंस एंड ऑल दैट. तो अब जैसे जॉब्स गुड़गांव में हैं एंड कंपनीज का वो होता है कि आप इतना ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, यू नो, दे वुड वांट यू टू, you know, maybe relocate to Gurgaon. Is the family okay with it? Yeah, currently the family is okay. I feel like family आपको रोकना नहीं चाहती, बट थोड़ा दिल्ली का इन्वायरमेंट ऐसा है कि उनका कंसर्न अपनी जगह हो जाता है इस चीज़ को लेके. सो दे नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग वट एवर आई वांट टू डू. दे नेवर स्टॉप मी अबाउट इट. सो दे आर हैप्पी अबाउट इट एंड दे आर लिटिल कंसर्न लाइक कि लड़की जा रही है, बाहर रहेगी थोड़ा. कभी मैं आई नेवर स्टेड अवे फ्रॉम माई फैमिली. Is there a sense of fear or cautious optimism? A little I sit with my family at the night, we talk, so I will miss those things and कि क्या होगा, कैसे होगा. And you stay in a joint family? Yeah, I stay in joint family. Okay. So my grandparents and my parents, my brother, little brother, so I will miss them obviously. Got So it. that's. But for your own betterment, do you think that this is sort of a break needed to go out of that comfort zone? जब सब कुछ अपने आप खुद मैनेज करना है, अपने फाइनेंसेस खुद से मैनेज करना है, अपना घर खुद से मैनेज करना है, अपना खाना खुद से मैनेज करना है, right? Are you looking forward to that? Yes sir, I'm excited about it, that finally I will become independent. I can take my own decisions, and I think it's necessary to stay away from like in the पेरेंट्स की छाया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और थोड़ा करना चाहिए अपने आप से खुद से. इसी से मे बी आई विल लर्न थिंग्स. इफ आई विल मिस्टेक, आई विल डू द मिस्टेक्स, आई विल लर्न फ्रॉम इट. सो आई थिंक इट्स नेसेसरी टू स्ट्रगल इन लाइफ अ लिटिल. हाँ बिल्कुल ठीक है. आई कम्प्लीटली रेसोनेट विद यू. कहीं ना कहीं पर वो एक्सपोजर हमेशा होना Yes, चाहिए sir. जिंदगी में, और उससे आप एक बेटर वर्जन बन के आते हैं अपने आप. एग्जैक्टली सर. ठीक है. और कहीं पर वो लगा था कि आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, तो मैं फाइनेंस में कैसे जा पाऊंगी, ये वो वाला रिजर्वेशंस थे आपके पास? Yes sir, I had a fear about it. Sir, I used to check on LinkedIn finance roles or various roles. Sir, there was no requirement of economics. Mostly they were like BCom. And secondly, तो ऐसे कैसे, जब आपने +2 में इतने अच्छे परसेंटाइल आया, उसके बाद आपने को देखा कि इकोनॉमिक्स करूंगी तो इतने सारे अच्छे वो मतलब जॉब्स आ जाएंगे, बट अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी अभी क्या सीन है? sir, I feel ki like after doing masters, I thought like people prefer MBA more than the masters. Or maybe if you are like, if I would have been landed on DSC, Delhi School of Economics, then it might be a good opportunity for me in the corporate world. But so when I used to search on the LinkedIn about the job profiles, so they were mostly about MBA or some BCom, and it was very less related to the economics. So that is why then I thought of ki like I should do an extra course or certification about the finance thing. Got it. And now you landed a job, right? मुझे आपसे एक बहुत you know candid question पूछना है, और मुझे I would want कि आप एकदम उसका candid आंसर करें. आपने जो 3 years की ग्रेजुएशन लाइफ में किया, इकोनॉमिक्स में हो या आपके फ्रेंड्स शायद बीकॉम में होंगे या इस तरह के डोमेन्स में होंगे, व्हाट इज द लेवल ऑफ लर्निंग? वो लर्निंग का लेवल कैसा है? मतलब वो चाहे इकोनॉमिक्स में हो या मींस दीज आर ऑल बेस्ट कॉलेजेस, पर अभी उनका हाउ डू यू रेट द लेवल ऑफ लर्निंग? कि आप क्या वो चीज़ें सीखती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होती हैं,
आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, या शायद लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर? सर आई फील जैसे जब मैं इकोनॉमिक्स में घुसी थी तो मेरे को भी लगा था कि लाइक इकोनॉमिक्स लाइक कितना वैसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, अपनी कंट्री के बारे में पता चलेगा. बट आई फील जो हमारा करिकुलम है वो काफ़ी बुक बेस्ड है, लाइक आपको रट्टे वाला चीज़ है, आपको लर्न करनी है चीज़ें. तो आई थॉट कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम था. आई थॉट कि इकोनॉमिक्स में फ़न आएगा कि वी विल डू सम रिसर्च अबाउट द के करेंट सिनेरियोज कैसे चल रहे हैं हमारे, या एक्चुअली कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो बट पॉलिसीज़ कैसे फॉर्म होती है, कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है. बट इन रियलिटी लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स इज़ वे टू डिफरेंट अबाउट इट. लाइक वी हैव द मैक्रो माइक्रो सब्जेक्ट, सो इट वॉज फुल ऑफ लाइक लर्निंग न्यूमेरिकल्स. तो कहीं ना कहीं पर वो सेंस ऑफ डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन था कि यार मैं क्या कर रही हूँ टाइप्स? हाँ थोड़ा बहुत लगा था कि मतलब ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लाइक क्योंकि ऊपर से ऑनलाइन सेमेस्टर थे हमारे. सो इट वाज लाइक कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रही थी चीज़ें लाइफ में. बट फिर था कि जब इतना पढ़ा है तो कर ही लूँगी कुछ ना कुछ. तो इसलिए ओके, फेयर एनफ. क्यों आपकी, यानी यू रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ द यूथ, यू नो, इन द सेंस कि हु आर एट द फेस जहाँ पे आपने अगर सही स्टेप्स लिए तो आपका ग्रोथ कैनवस बहुत अच्छा होगा. yes, sir. ठीक है. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी सॉर्ट ऑफ क्लूलेस हैं. हम हमारे पास भी वॉल स्ट्रीट स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं होता अपने को क्या करना है. Yes, एक स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी होती है कि चलो बीकॉम कर ली, इकोनॉमिक्स में वो कर लिया, अब या तो कैट की तैयारी करेंगे, हाँ exactly. राइट, या फिर या मास्टर्स करेंगे, या फिर अगर फीमेल्स के केस में होता है कि यार हमें फटाफट से अपना मतलब करियर शुरू करके और फिर शादी हो जाएगी, प्रेशर एंड ऑल. हाँ सर. तो आई मीन लॉट ऑफ जगलिंग अराउंड व्हिच हैपेंस. ठीक है. तो इफ आई वर टू गो बैक टू यामिनी ऑफ 2020, जब उनका +2 हुआ था, उनके 96.5% आए थे. इज देयर एनीथिंग यू थिंक that Yamini could have done differently? Sir, if I tell you like truly, so that sir, I wanted to become a CA in my class 11th and 12th. Okay. I wanted to do the CA, but when my result came 96.5, so I was very happy that time. So, and then I heard about economic honors, and I got North campus. So I was like, नहीं यार economic honors ये बहुत अच्छी field है, like superb है ये वो. सो देन आई थॉट, सो आई फील कि आपको अपने डिसीजंस लाइक बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए लाइफ में. और अगर पर आई ऑल्सो फील कि अभी आप लर्निंग स्टेज पे ही होते हो अपनी, जब आप अपने स्कूल से निकलते हो, आप अपने ग्रेजुएशंस कर रहे होते हो, तो आपको एक प्लस मेरी लाइफ में तो कोई इतना मेंटोर भी नहीं था मुझे गाइड करने के लिए. तो मैं अपने डिसीजंस खुद बनाती थी, खुद अपनी रिसर्च करती थी, खुद सोचती थी कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और वो सोच कहाँ से आती थी? अपने फ्रेंड्स से पूछ के या फैमिली से पूछ के, या कैसे? बेसिकली अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करके चीज़ें कि कैसे करना चाहिए लाइफ में आगे, ये चीज़ सही है या नहीं है. सो माय फ्रेंड्स हेल्प मी अ लॉट इन दिस. गॉट इट. तो फिर इकोनॉमिक्स का में ऑनर्स में जाने का डिसीजन भी फ्रेंड्स के साथ था? सर हाँ मतलब फ्रेंड्स के साथ ऐसा सच नहीं था, बट आई थॉट तो थोड़ा वो भी कहता यार सब बीकॉम ऑनर्स ही कर रहे हैं यार, कुछ हटके करना चाहिए. सब एमबीए कर रहे हैं, क्या सब एमबीए करे जा रहे हैं, थोड़ा हटके करना चाहिए एमबीए से. तो कहीं ना कहीं पर लगा कि बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ कि मुझे शायद ठीक है, आप दौलत राम से कर रही हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, कि कहीं ना कहीं पर मुझे कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज भी करने चाहिए या करने चाहिए थे? यस सर, दैट्स व्हाई आई डिड एक्चुअरीज इन सेमेस्टर साथ के साथ. यस सर. ठीक है. तो बट कभी कभार जैसे ओवर थिंकिंग में, जैसे मास्टर्स के टाइम हुआ था कि यार क्यों इकोनॉमिक्स लिया, इससे अच्छा तो जैसे सब बीकॉम ऑनर्स के साथ सीए कर लेते थे, काश मैं भी कर लेती थी, पोटेंशियल तो था करने का. बट फिर आई फील कि द पाथ इज सेट, योर डेस्टिनी इज सेट, सो लाइफ इज टेकिंग वेयर एवर इट वांट्स टू. बहुत बढ़िया. दैट्स द एटीट्यूड, दैट्स हाउ इट शुड बी. लेट्स टेक लाइफ द वे इट शुड बी. यस सर. ठीक है. और आगे का व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान नाउ? So now I got a job, so I've landed a job. So my plan is not a job. You got to do a very very good job, right? A very good profile, right? So yes, sir. I'm very happy about it. So my plan is that like I need to develop my skills and expertise in this field only, and Got it. then just develop my knowledge. And where do you see yourself, say 3 years from now? क्या लगता है आपको कि आप कहाँ पे होंगी, क्या कर रही होंगी, एक्स्ट्रा क्या कर रही होंगी over and above? I feel that I will have a great knowledge, and maybe if I will doing well in the work, maybe I get some higher promotion or something. That goes without saying. That's the best part about these profiles. Yes, ठीक है, sir. बिकॉज यहाँ पर अगर आप का इंटेलेक्ट अच्छा है, आप अच्छा परफॉर्म करती हैं,
तो स्काई इज द लिमिट, Yes, राइट? sir. इस तरह के करियर ऑप्शंस में. Yes, sir. ओके, बढ़िया. Any piece of advice you would want to give to the Yaminis of 2020s, जो अभी फ्रेश पास आउट हैं 12th से, कि आगे क्या करना चाहिए लाइफ में? Just trust yourself. Just trust your parents. Your parents never want you to take bad decisions in your life, and just be yourself, and you will make the best decisions for yourself. You know yourself very well, basically. फैंटास्टिक. इनफैक्ट जब आपका हमें फीडबैक मिला था इंटरव्यू को लेकर, वो यही था कि दैट शी इज हर सेल्फ, राइट? शी इज़ वेरी ऑनेस्ट in her conduct, right? And we feel that she has makings of all the great career, and I so very rightly believe that, because I've taught you, and I have reasons to believe that you have makings of a fantastic career and life. So wishing you all the best. Thank you, sir. Thank you so Thank you. much, sir, for Sure. this opportunity. Sure, thank you.